there are five parts of this stone. The exoskeleton. डीपीएस के बारे में बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो व्यूअर्स को हर बार चौंका देते हैं, जिसमें से एक है, आपने सुना होगा कि करियर काउंसलिंग की जाती है, करियर ड्राइव्स होती हैं, करियर फेयर होते हैं, लेकिन ये सब होता है कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी लेवल में। लेकिन स्कूल लेवल पे भी एक करियर फेयर ऑर्गेनाइज हो चुका है डीपीएस के एमपीएच में, ये देखो। और यहाँ पे 35 प्लस रिनाउंड इंडियन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से खुद मैनेजमेंट पहुँची हुई है जो बच्चों को गाइड करेंगी। और आज ना पेरेंट टीचर्स मीट भी है डीपीएस में, तो पेरेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या स्कोप है बच्चों के लिए। और ये सब होने वाला है डाइवर्स फील्ड्स के लिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब बच्चों को और पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करियर फेयर बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी स्टेप है जो डीपीएस ने उठाया है। और बच्चे इस स्टेप को कैसे देखते हैं आइए जानते हैं। तो वी हैव द हेड गर्ल विद अस और एक बार उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि डीपीएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग है, बट आप एक स्टूडेंट है और आपके व्यू पॉइंट में हाउ इज़ डीपीएस डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स इन द सिटी? Okay, so actually the USP of DPS Karnal is to focus on activity-based learning comparative to all other firms. So we focus on building real-life problems, real-life solutions. That's how DPS Karnal works, and it is different from other schools. We focus on practical learning, and our curriculum is based with the same. तो कैसे आपको लगता है डीपीएस बाकी सब स्कूल से अलग स्टेप्स लेता है? Yes, I totally agree with Priya. And like you said, that there was a Model United Nations held in our school, which was absolutely a success. And moreover, I believe being in the student council, I have learned so many great opportunities and also so many great values such as leadership. And this has also been a very good thing for nurturing my behavior and my character. And also I believe that this career fair is a perfect opportunity for me to see that what I have to do in the future itself. कैसे लगता है किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करेगा? DPS is always known as the guardian of the DIPSITES. This career fair is the evidence of the same. As in coming future, we class 12 students will face problem in searching of universities and courses. So I think so this career fair will help us to locate our universities and courses. किस तरीके से वर्क किया जा रहा है स्कूल फैकल्टी की तरफ से? I am Arman. I am the head boy of DPS Karnal, and I have been a part of this school from past 11 years. And I believe that I have learnt a lot from this school and its values over this time. And now in my final year, it's my turn to give all of that back to the school community. And I think that our school is not just an academic institution, but rather it's a place which focuses on overall holistic development of the students here. And the credit for this goes to our faculty and management who always push ourselves from our comfort zone. प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कैसे स्कूल काम कर रहा है? Actually, you can see that the career fair arranged by school is giving me the opportunity to build up more relations, like get to know more institutes and all. So this makes DPS Karnal unique. आप इसे कैसे देख रहे हैं? Yes, so DPS Karnal has organized this career fair, and there are mentors and professionals, so we can choose the career paths we want to. And I've always been impressed by how DPS Karnal has emphasized on personal growth alongside our academics. And this career fair is just an evidence which shows that DPS Karnal has always been there by our side. दिल्ली पब्लिक स्कूल मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है जब अपने बच्चों को लर्निंग के लिए कुछ भी नए कंसेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। और एग्जीबिशंस मुझे लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल येट फन एंड एक्सपीरियंशियल वे ऑफ लर्निंग है। और एग्जीबिशंस भी बहुत ही अमेजिंग, मतलब यहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ही ब्लूमिंग टॉपिक है, AI एग्जीबिशन चल रही है इस वक्त। और सब बच्चों ने कुछ ना कुछ डिफरेंट यहाँ पे किया हुआ है खुद से क्रिएट। आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, कुछ गेमिंग क्रिएट हुई हैं और कुछ रोबोट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं जो फुली बच्चों ने ही बनाए हैं, जो कि बहुत ही मुझे लगता है मोटिवेशनल होने वाला है। जो बाकी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, और इस AI एग्जीबिशन में क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ डिफरेंट है, उसके लिए वी हैव सम स्टूडेंट्स विद अस। तो सबसे पहले तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतनी टेंडर एज में आपको सिखाया गया, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इट्स वेरी फन एंड वेरी एजुकेटिंग, एंड इट्स वेरी लाइक interesting to learn about these new tactics and all.
Our experience is fabulous here, and the learning is also enjoying. Like we are getting some practicals too, so it's fun. कंसेप्चुअल लर्निंग और थोरो एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ डाइवर्स टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रैक्टिकली आपको कोई स्कूल वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के कुछ फ़न, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू एक आर्टिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करते हुए वो बोरिंग मैथ्स की चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और DPS में आज AI एग्जीबिशन के साथ साथ मैथ्स एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज हुई है, साइंस एग्जीबिशन भी यहाँ पे चल रही है और इसी के साथ बहुत ही फन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे ये मैं देख रही हूँ कोई प्रोबेबिलिटी गेम है, तो इसको कैसे खेलते हैं बताइए। पहले आप 2 मेंबर्स होंगे। ओके इसको रोल करेंगे इसमें ओके ओके ठीक है, ओके चलो ट्राई करते हैं। तो मुझे इसमें रोल करना है, राइट? जैसे आपका 0 आया, ओके फाइन, 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके कोई भी दूसरे प्लेयर इसको करेंगे ओके, और उनके पॉइंट्स आ जाएंगे। जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उसको वो जीत जाएगा। ओह ग्रेट। So it's a one chance game. ओके पर मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और आगे भी मैं देख रही हूँ कुछ प्लशीज़ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी गेम चल रही है? Greetings of the day, ma'am. So you will get some money, some notes we have made by ourselves. Okay. And you will get the tokens from which you will get the discount. इसका डाइस कौन सा है लूडो का? दिस इज़ द डाइस। ओके चलो रोल करते हैं और देखते हैं। Actually, this is not the game. ओके बट जो भी है मुझे लगता है दिस इज़ वेरी फन और बहुत ही अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स चल रही हैं। यहाँ पे फिर मैं देख रही हूँ लेडर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है पिरामिड फन द गेम ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स है, बहुत मुझे लगता है मज़ा आ रहा होगा, बच्चों को बहुत इंजॉय भी करे होंगे। तो ना मुझे लगता है फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मुझे हमेशा से फ़ोबिया रहा है, लेकिन अगर मुझे भी ऐसे सीखने का मौका मिलता है रेजोनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, तो फिर तो भाई मुझे भी अच्छे से समझ में आ जाता। इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मूवमेंट एक्टिविटी को, प्रिंसिपल को आप एक इस तरीके से प्रैक्टिकल के ज़रिए सीख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोपगेशन जैसे और पिच एंड फ्रीक्वेंसी जैसे कंसेप्ट को क्लैरिफिकेशन के साथ समझना और पढ़ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है टॉपिक रहने वाले। तो किस तरीके से करते हैं आप बताइए, क्या है ये आपका? All the vibration travels through all the straws. Okay. This shows that sound travels through a medium. And when we twist it, it forms a sine wave, which is a kind of wave. प्रेशर और सरफेस टेंशन जैसे सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ तो चल रहा है, ये तो मैंने अपने स्कूल में भी देखा है, बज़ वायर गेम। तो अगर इसको टच करते हैं तो कहाँ पे टच करना चाहिए? ओके तो ये बंद होना स्टार्ट हो जाता है। अरे वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ये है ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्सेज, ये कैसे काम करता है? This is by the presentation of the food. When you pinch your nose, you don't get what is it. Maybe you get donut, gems, petha or something. But when you see the presentation of food or you taste it, then you know about it. और फिर यहाँ पे क्रॉस पजल गेम है। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। माइक्रोस्कोप के फैक्ट्स भी आपको जानने मिलेंगे। आपने खुद बनाया माइक्रोस्कोप? और वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो कार्डबोर्ड की हेल्प से खुद माइक्रोस्कोप बनाया। भाई बहुत टैलेंट है DPS के बच्चों में। है फैकल्टी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब बच्चों के अंदर इतना टैलेंट इम्बाइब होता है। डेंसिटी टार एंड डिसअपियरिंग इंक, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन इट। ओके To make it visible, we'll use turmeric as an indicator. ओके फाइन, इट्स इंटरेस्टिंग। और देखते हैं सच्ची में मैजिक होने वाला है क्या? And as you can see, it is slowly turning red. या आई कैन सी। Let's understand the science behind this. अगर दूध में मिलावट भी होगी ना तो भी DPS के बच्चे तो एक्सपेरिमेंट से एग्जामिन कर ही लेंगे कि ये प्योर नहीं है। डिटर्जेंट इन मिल्क टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, अल्ट्रा टेस्टिंग यहाँ पे, यूरिया टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत ही फन चीज़ें हो रही है जो हम लेबोरेटरीज़ में देखते हैं ना, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, वो सब यहाँ पे किए जा रहे हैं। मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्ट हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फ़न वे में बच्चे इंजॉय करें। और जब कोई नई चीज़ सीखते हुए आप इंजॉय करते हैं तो फिर मुझे लगता है उससे बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे रेड ब्लड ग्रुपिंग रिजल्ट, ब्लड टेस्ट जो किए जाते हैं ना, वो भी खुद दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे करें। देखो यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है
और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने तो वाइट कोट भी पहना हुआ है प्रॉपर। तो ये देखिए ब्लड टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो आपने भी करवाना हो आप भी DPS आ जाओ, आपको भी किसी मेडिकल लेबोरेटरी जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बहुत कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है और मुझे लगता है कुछ चीज़ें तो मैजिकल भी हो रही हैं। ये है एस्केप रूम, जहाँ पे पेरेंट्स आएंगे और उनको डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करना होगा एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू एस्केप द रूम। तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर हैं और क्रॉसवर्ड को सॉल्व करें। मैम कितना मज़ा आ रहा है एस्केप रूम? बहुत मज़ा, वी आर रियली एंजॉइंग दिस टाइम विद दिस एक्टिविटी। लास्ट लेवल पे हो ना? हाँ, तो अभी एस्केप कर जाओगे। बाकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं आज, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा पूरा आ रहा दिन है, फन हो गया, बहुत अच्छा। और वैसे आपके बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ कैसी हो रही है DPS? बहुत अच्छी, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अरे वाह, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ, पेरेंट्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और साथ में इंजॉय कर रहे हैं। लेवल 1 है ग्रामर ग्रिड लॉक, जहाँ पे मतलब आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करना होगा। फिर कुछ रिडल्स आएंगी, बेसिक रिडल रिले, उनको सॉर्ट करना होगा। थर्ड लेवल पे क्विक स्पार्क चैलेंज है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एंड देन यू रीच द 4th लेवल और फिर आप ये फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करोगे और एस्केप रूम को करोगे एस्केप। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सुना है एस्केप रूम के कंसेप्ट के बारे में? कमेंट करके बताइए। Good morning, ma'am. I am Kanush Sharma of class 6A, and I am standing here to tell you the topic automatic cloth retrieval machine. It has Arduino circuit. It senses the water coding commands. Because of these, the rod with close extends to a limit. Step motor, it generates power inside the model, and last but not the least, direct current through adapter. It runs the whole model. Show us. The clothes will automatically retrieve when it is a rainy day because it senses the rain over here. वेरी स्मार्ट। मतलब आपके घर में जैसे आप कपड़े सूखने के लिए टंगाते हैं ना, तो ये एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने डाला वाटर, जैसे रेन होनी शुरू होगी मॉइस्चर को वो लॉक इन करेगा, वैसे ही ये खुद जो है नीचे रूफ के नीचे चला जाएगा और आपको एकदम भागना क्योस ही नहीं करनी पड़ेगी। वेरी इंटेलिजेंट थॉट और बहुत ही स्मार्ट है भाई DPS के बच्चे तो। और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिखाया है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 10s ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं बहुत कम एज के, बहुत टेंडर एज में बहुत ही स्मार्ट चीज़ें कर रहे हैं यहाँ के बच्चे और देख के बहुत मज़ा आ रहा है। इनकी ट्रिक्स, इनकी जो थॉट प्रोसेस है। LED लाइट अप कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइट जलती है इनमें? दिखाइए। ओके, तो देखिए इनमें लाइट भी जलती है। वेरी स्मार्ट, वेरी वाइब्रेंट, बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। मैं हैरान भी हूँ कि बच्चे इतने स्मार्ट है इतनी कम एज में DPS में। सिर्फ अभी तक हम सवाल पूछते हैं, अभी DPS के ये प्राइमरी विंग के बच्चे सवाल पूछेंगे। बिकॉज आप लोग आज क्या बने हुए हो? मीडिया। चलो पूछो, आस्क योर क्वेश्चंस। Do you like our school? आई लव इट। What do you like to do in your free time? आई लाइक टू रीड बुक्स। Okay, that's nice. Which is your favorite dish? माई फेवरेट डिश, आई लाइक नूडल्स। विच इज़ योर फेवरेट डिश? Pav Bhaji. पाव भाजी। ओ, आई ऑल्सो लव पाव भाजी। तो मतलब देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने इंटरैक्टिव है। तो आज पेरेंट्स आएंगे, PTM है और बच्चे उनसे पूछेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत फन कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होने वाली है। तो आज बच्चे बेसिकली मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेरेंट्स जो कि आज पहुँचे थे, फन एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बाद स्पेशल नोट्स लीव करे। मैम कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा। तो आपके दोनों स्टडी है DPS? यस। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो सेकंड सोच भी नहीं सकती कोई स्कूल में ज्वाइन करूँगी। ग्रेट। हाँ, और आपने नोट लिख दिया? यस मैम। क्या लिखा आपने? वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ मेंबर्स एंड नाइस हॉस्पिटैलिटी। अरे वाह। कुछ एक्टिविटीज़ ना ऐसी होती हैं जो आपके अंदर वो स्किल्स इम्बाइब करती है जो आपको लाइफ टाइम अलग अलग फेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि अटेंशन बिल्डअप करने में पोट्री एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है और यहाँ पे बच्चे जो है ना पोट्री कर रहे हैं, क्योंकि पोट्री की खास तौर पे इन लोगों के लिए ना एक यहाँ पे ऐसे सेटअप किया गया है जहाँ पे ये लोग सीख सकते हैं नई एक्टिविटीज़ को। एंड इट्स ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। हाय, क्या नाम है आपका और क्या बनाने वाले हो? I am trying to make an elephant, and my name is Kunshvi. I'm currently studying in grade 8. Are you enjoying the process? Yeah, sure. It is very good, and it is very encouraging, and it will build creativity in other young students. True. Hi, what's your name and what are you trying to make? My name is Virat and I am trying to make a panda bear actually. Oh, you like panda bear? Yes, I do. Hi मैम, कभी पोट्री ट्राई की आपने? पॉटरी, हाँ, यस। अच्छा, और आज भी करने वाले हो?
हाँ, श्योर. You like it, you like doing it. Yeah, I like doing it. पेरेंट्स और बच्चे साथ में कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा मुझे लगता है अच्छा मी टाइम भी हो जाएगा पर्सनल टाइम बॉन्डिंग के लिए, और उसके अलावा कुछ नया सीख भी लेंगे. हाय मैम, कैसा लग रहा है आपको? पोट्री ट्राई कर रहे हो? I'm excited. This is first time I'm trying this, so I'm very excited. I'm trying to make diya because Diwali is coming, so I'm trying to make diya. Good. So let's see. Is she your daughter? No, my daughter is in the class. ओके, Yeah. क्लास चल रही है, ठीक है. तो पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की क्लास चल रही है, कुछ कुछ बच्चे भी हैं जो इंजॉय करें. मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपने ट्राई किया, करने वाले हो ट्राई? No, अभी मैं ट्राई करूँगी. और क्या बनाओगे, सोचा? Not yet. सोचोगे. आपको लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? Very important, I believe. Very important because इससे क्रिएटिविटी बाहर जितनी होती है बच्चे की निकल कर आती है, तो इट इज़ really very good. आप भी करोगे? करोगे आप? वेरी क्यूट. तो मुझे लगता है ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें आप भी बना सकते हो. आप भी DPS में अपने बच्चों का एडमिशन करा दो, क्योंकि ऐसी ग्रोथ होगी ना फिर बच्चों की, आप खुद अमेज हो जाओगे. आप मतलब जो भी फील्ड में चाहते हो ना बच्चे को फ्लरिश करना, अच्छा करियर इस्टेब्लिश करना, उसमें टेंडर एज से ही DPS अपना योगदान, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा देगा.